વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રાર્થના માટે તૈયાર? સર્વેની આંખો બંધ. ઓમ સહનાવવતુ સહનો ભુનક્તુ સહ વીર્યં કરવાવહે તેજસ્વી નાવધીતમસ્તુ મા વિદ્વિષાવહે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. Friends, if you rest, you rust. Remember this. Hello, my dear friends. Let we continue our lesson number 8, Cell, the Unit of Life. Lecture 3. We will see about ribosomes and inclusion bodies. This topic is included in prokaryotes. So we are to see about ribosomes. You are aware about one fact, that the function of ribosome is protein synthesis. How that occurs, that we are to see in our today's lecture. In your material, in your NCERT textbook, it is given in very short paragraph. But we will see something more, something different. But remember the one thing, that the thing which I am going to teach you here, it is a part of your NEET syllabus. So you must be here 100%. Ribosomes are available in prokaryotic cells. Means suppose in bacterium and it is concerned with cell membrane. It is associated with cell membrane. No doubt that these ribosomes are also available as a free dense particle in the cytoplasm too. And if we talk about eukaryotic cell, where these ribosomes are located, the answer would be number 1 on endoplasmic reticulum, number 2 on nuclear membrane, number 3 in chloroplast, number 4 in mitochondria. So these are the 4 places. And number 5th in cytoplasm as free. Number 6th here in case of the prokaryotes, it is located on cell membrane too. So if we are asked a question that which of the following sites for the location of ribosomes in any living cell, in any living cell would mean that this cell may be either prokaryotes or eukaryotes. तो उसका जो आंसर आएगा वो 6 लोकेशन आएगा. टोटल नंबर ऑफ द लोकेशंस आर 6. पहले सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म में फ्री, ऑन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइट, ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन क्लोरोप्लास्ट एंड इन माइटोकॉन्ड्रिया. अगर अपने को ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि इन केस ऑफ द यूकैरियोटिक सेल, तो इसमें से सेल मेम्ब्रेन को निकाल देना है. साइटोप्लाज्म रखो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रखो और क्लोरोप्लास्ट रखो और माइटोकॉन्ड्रिया रखो. अगर अपने को ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि वेयर दिस राइबोसोम्स आर फाउंड इन एनिमल सेल, इसमें से क्लोरोप्लास्ट को निकाल दो. ऐसा दिमाग लड़ाना है. दिस इज कॉल्ड नीट. वेरी सिंपल. सो इट वॉज डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज पेलाडे. नाउ वी विल सी about ribosome. There are kinds of ribosome. In case of the prokaryotes, it is of 70S kind. Now this S stands for, actually ये sedimentation coefficient है, given by one Swedish scientist. उसको नोबेल भी मिला था. उसका नाम स्वेडबर्ग है, इसीलिए एस रखा. But this S actually indicates size and density of ribosomes indirectly.
So this technique was discovered by him. You call it as centrifugation process. What you are to do, you are to take the cell component in a test tube and then rotate it at some of the RPM, rotation per minute, for example 250 or 500 RPM. So whichever the organelle has more density and somehow bigger size, this bigger size organelle will be settled down at specific speed. Okay, and this is subject to G, that we are aware. So that sedimentation coefficient index. So whenever we will write here, suppose 70s and 80s, would mean that 80s is more than 70s. उसका मतलब ये हुआ कि जो 80s वाला राइबोसोम है उसकी साइज समहाउ बिगर है और उसकी डेंसिटी थोड़ी सी ज्यादा है. So it is Swedberg sedimentation coefficient index, but this is the indirect, this is the indirect, showing us its size and its density. Remember this thing. Now 70s ribosome has got two subunits, 50s and 30s. So no one student must do some of these 50 and 30s. इसको प्लस नहीं करने का है कि भाई चलो 50 प्लस 30 इज इक्वल टू 80 आएगा. यहां पर साफ कर रहे हैं 70. कैसे देखना? फॉर एग्जांपल ये जो 50s सब यूनिट है ये ऐसा है. सपोज दिस इज 50s सब यूनिट. अभी ये जो 30s सब यूनिट है वो ऐसा है. ये 30s वाला, ये 30s वाला सब यूनिट, ये थोड़ा सा छोटा साइज और डेंसिटी. तो अपने को पता है दिस इज समहाउ बिगर इन साइज, स्मॉलर इन साइज. अभी मैं ये दोनों को बाइंड कर रहा हूं. देखना तो अपने को ऐसा कुछ पता चला ऑन द बेसिस ऑफ दिस फिगर, ऑन द बेसिस ऑफ दिस बॉड वर्क, कि ये इसके साथ लग गया. अभी ये जो पूरा का पूरा एक यूनिट हो गया, इट इज कंसिडर्ड एज 70s. इट इज कंसिडर्ड एज 70s. सो इट इज समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस. इसकी लेंथ सपोज कोई है XYZ, सपोज 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 15 प्लस 15 30 सेंटीमीटर. अगर ऐसे में लगा दूं तो, और अगर ऐसे में लगा दूं तो ऐसे, तो ये कम हो गई. ये 5 कॉमन आ गया ना, तो 10 10 एंड 5 25 हो गई. ये 5 कॉमन आ गया. 15 15 30 25, 50 30 80, 50 30 80, मगर एस से कनेक्शन बना दिया 70s. 15 15 30 कनेक्शन बना दिया 25, 80 कनेक्शन बना दिया 70s. व्हाट इज अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन? थोड़ी सी बात कर लेते हैं. ऐसी टेस्ट ट्यूब है, उसका एक स्पेसिफिक साधन इंस्ट्रूमेंट होता है. तो मैंने उसके अंदर डाल दिया सपोज सेल की सब ऑर्गेनेल, सेल को क्रश करके उसके अंदर डाल दिया, बहुत सारे सेल को ब्रेक डाउन करके. उसकी भी स्पेसिफिक टेक्निक होती है. अभी इसके अंदर बड़ी साइज के पार्टिकल होते, छोटी साइज के भी होते हैं ना, उससे भी छोटा होता है, समहाउ बिगर होता है, ये सब होता है. अभी मैं इसको जब घुमाऊंगा एट सम ऑफ द RPM, द पार्टिकल whose density and size is bigger, more, will be settled down at specific speed, at specific speed. तो whichever the particles, कोई भी अगर पार्टिकल छोटा सा रहेगा उसका लेयर ऊपर बनेगा, जो कोई भी पार्टिकल बड़ा होगा उसका लेयर नीचे. यहां पर पार्टिकल मैं ले लेता हूं ये रिबोसोम्स, डेंस पार्टिकल्स.
तो इसके अंदर हमको रिजल्ट जो मिलने वाला है वो रिजल्ट कुछ ऐसा मिलने वाला है, बिगर सेटल डाउन एट बॉटम, somehow smaller and smallest, ऐसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा. This is very clear that if you centrifuge blood, सेल नीचे रहेंगे, ब्लड प्लाज्मा ऊपर रहेगा. Okay, so remember one thing, that S is Swedberg, stands for sedimentation coefficient index. Indirectly, this number gives us the size and density of ribosomes. इतना ही याद रखना है. ओके, और यहां पर मुझे जो मिला वो 70s मिला. अब ये 70s का भी मैं सेंट्रीफ्यूगेशन करूं, ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे, तो पहले नीचे कौन बैठेगा? 50s वाला. ऊपर कौन रहेगा? 30s वाला. राइट? अगर यहां पर एक हेडिंग लगा दूं, यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, तो मैं यहां पर लिखूंगा कि इसका 80s होता है और जो सब यूनिट होता है वो 60s प्लस 40s, 60s प्लस 40s होता है. तो ये 100 नहीं, अभी आपको पता चल गया कि 60 प्लस 40 100 नहीं करना है, 60 प्लस 40 ये 80s. So this is the difference in between prokaryotes and eukaryotes, ribosomes. In case of the eukaryotic cell, ribosomes are there, but it is of 80s kind. Here it is of 70s kind. Okay. तो ये एक ड्राइंग अपनी बुक के अंदर दिया गया है. Now let we see the function of it. Okay. So I will write first of all here messenger RNA. Let me write it here, messenger RNA. Now, what is the meaning of messenger RNA? Its name indicates that it has some message. Remember one thing, that whenever I write messenger RNA, इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक ऐसा पार्ट है जिसके अंदर कुछ मैसेज है. What is that message? The message is for the synthesis of a particular protein, of a particular polypeptide chain. Now this is new term for you. Protein you are aware, but it is a polypeptide. इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे एमिनो एसिड्स एक चेन में है. Amino acids are the fundamental unit of a protein. As we are aware that in case of our home, the fundamental unit is brick. In case of our body, the fundamental unit is cell. Similarly, in case of any protein, the fundamental unit is amino acid. There are around about 20 to 22 kinds of amino acids occur in the cell, and through the binding of different amino acids, different kinds of the amino acid in a different number, in a different way, they constitute one specific protein. So amino acids, they are most important part, we can say, for the synthesis of the protein. Now what happens that we are to see? Suppose I will draw this messenger RNA as one line. Okay, and I have to locate this RNA on ribosome. राइबोसोम का 2 यूनिट में ऐसे यहां पर लगा रहा हूं. दिस इज द फर्स्ट यूनिट एंड दिस इज द सेकंड यूनिट. The first unit bigger and smaller, second unit. Let me draw more than one ribosome. I have drawn 3 ribosomes here. How many? 3 ribosomes here. तो ये ribosome है. This is ribosome. Ribosome is made up of 2 parts. इसके पास ribosomal RNA है और प्रोटीन है. Very interesting thing. Protein you are aware, RNA also you are aware, ribose nucleic acid. This is messenger RNA. This is ribosomal RNA. One more kind occur in the cytoplasm. It is called tRNA. That is transfer RNA.
or otherwise known as adapter molecule, that we'll see in standard number 12, right? Now I have drawn one unit over here in which you find one messenger RNA and more than one ribosomes. This unit that contain one mRNA plus more than one ribosome is known as polysome or polyribosome. Polysome और polyribosome. ये जो पूरा का पूरा यूनिट आपके सामने रखा है, दिस यूनिट इज नोन एज polysome और polyribosome. The only question that was asked for more than 2 to 3 times in the NEET is this. ये एक ही ऐसा क्वेश्चन है जो 2-3 बार नीट के अंदर आ गया. अदरवाइज व्हाट हैपेंस एट एवरी ईयर न्यू क्वेश्चंस कम्स. इट इज ए speciality of NEET. No one question is repeated. No one question is repeated except this one. The question is very easy. When one mRNA is located on more than one ribosome, the complex which is formed is known as, ये आंसर दिया गया है, कई बार ये आंसर दिया गया है. तो याद रखो, एक mRNA plus more than one ribosome collectively known as polysome or polyribosome. एक ही ऐसा क्वेश्चन in the history of NEET and PMT. NEET was previously called as pre-medical test. That was PMT, right? ये एक ही ऐसा क्वेश्चन है कि जो पिछले 25 ईयर में 3 या 4 बार रिपीट हुआ है. इसके अलावा एक भी क्वेश्चन नीट में कभी भी रिपीट नहीं होता है. Every year you find new question, new question, new question. Not from new syllabus. Syllabus is as such as it is prescribed by NTA. Now what happens, my dear friends? We are aware that there is DNA in the prokaryotic cell. होता है भाई, होता है. उसका जीनोम, बैक्टीरियल क्रोमोसोम you can call. It is having DNA. Now specific portion of DNA opens. For example, यहीं पर ध्यान रखना अच्छी तरीके से. Specific portion of the DNA. DNA has 2 chains that you can clearly see here. Out of these 2 chains, one will be playing role for the synthesis of messenger RNA. No doubt all kinds of RNAs are formed in this manner. तो सपोज ये चेन की मदद से मैसेंजर आरएनए बना है. So mRNA is formed with the help of the DNA, and this process is called transcription, the first phase of protein synthesis. Transcription, ये याद रखना. Let me tell you one surprise. In the standard 12th, I will take 2 lectures to teach you transcription and translation. These 2 things. Now what is the meaning of translation that we are to see? But the understanding of this term, transcription, synthesis of messenger RNA with the help of DNA, is known as transcription. Now this messenger RNA has message in the form of genetic code. There is a coding language. तो ये इसके अंदर है. तो यहाँ पर 3 कोड रख देते हैं. Remember one thing. Messenger RNA has so many codes. कोड किसके लिए है? स्पेसिफिक एमिनो एसिड के लिए. एमिनो एसिड क्या है? प्रोटीन का फंडामेंटल यूनिट. So many amino acid unites with each other to form one polypeptide chain. This chain is known as protein. Remember this thing, my dear friends.
तो अभी क्या होगा, राइबोसोम्स के ऊपर मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए के पास जेनेटिक कोड, यहां पर मुझे लिखना है जेनेटिक कोड फॉर स्पेसिफिक एमिनो एसिड. Amino acids are building block of protein. Amino acids are building block of polypeptide chain. Now suppose first code is for one amino acid which is called methionine. ये methionine amino acid का नाम है. So these amino acids from the cytoplasm is picked up by tRNA, transfer RNA, and it is carried over here. So ब्लू कलर का एमिनो एसिड लगा देते हैं. आई विल राइट ओनली एमिनो एसिड ए, और यहां पर मैं ड्राइंग करूंगा ये टीआरएनए है, इसका नाम ट्रांसफर आरएनए. तो ये एमिनो एसिड को ट्रांसफर कर रहा है, उसको सॉल्यूबल आरएनए भी बोलते हैं, एज इट इज अवेलेबल इन द साइटोप्लाज्म. स्पेसिफिक एमिनो. अभी ये सेकंड वाला कोड सपोज मिथियोनिन नाम का एमिनो एसिड का नहीं है, वेलाइन का है, तो एक टीआरएनए वेलाइन को यहां पर ले आएगा. ये भी एमिनो एसिड है, आई विल राइट एमिनो एसिड. ये पहला वाला एमिनो एसिड, ये दूसरा वाला एमिनो एसिड कैरिड बाय टीआरएनए. रिमेंबर वन थिंग, फॉर स्पेसिफिक एमिनो एसिड देयर इज ए स्पेसिफिक टीआरएनए. अमिताभ बच्चन को ले जाने वाली मर्सिडीज, जया बच्चन को ले जाने वाली कोई एक दूसरी गाड़ी, फॉर एग्जांपल मारुति 800, ऐसे. सो स्पेशल काइंड ऑफ द टीआरएनए कैरी स्पेशल एमिनो एसिड. ये सब जेनेटिक्स में आने वाला है. ओके अभी क्या होगा, दिस टू एमिनो एसिड जॉइंट विद द हेल्प ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड, ऐसे हो जाएगा. ये टीआरएनए यहां से रिलीज होगा. उसके बाद यहां पर एक और कोड है, और टीआरएनए और एमिनो एसिड, ऐसे करते 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 एमिनो एसिड की एक लंबी चेन बन जाएगी. दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलेशन. सो पहला ट्रांसक्रिप्शन, दूसरा ट्रांसलेशन. तो भाई ट्रांसलेशन किसका हुआ, एमआरएनए के ऊपर जो जेनेटिक कोड है उसका, मतलब एमआरएनए का. किसके अंदर हो गया, प्रोटीन के अंदर. तो अभी मैं यहां पर लगा देता हूं. देखो अभी इस साइड मुझे नहीं ड्रॉ करना है, यहां पर बहुत सारे एमिनो एसिड लगा देता हूं. ये पॉलीपेप्टाइड चेन, उसको बोल देता हूं पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन, अदरवाइज प्राइमरीली प्रोटीन. ये सब एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड एमिनो एसिड एमिनो एसिड एमिनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड, सो मेनी पॉलीपेप्टाइड, सो मेनी पेप्टाइड बॉन्ड, एक पॉलीपेप्टाइड चेन. दिस इज हाउ प्रोटीन इज फॉर्म्ड even in our body, even in prokaryotes. So remember one thing, यहां पर जो मैंने कोड लगाया पहले, सपोज यहां पर मैंने लगाया था मिथियोनिन, उसके बाद वेलाइन, उसके बाद आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, जो एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई उसको मैंने यहां पर रिलीज कर दी. ये कंटिन्यूअस चलेगा चलेगा, कब तक चलेगा, जब तक यहां पर फाइनल कोड नहीं आया, तब तक चलेगा. Now what we can say, that this protein is formed according to the DNA chain. क्योंकि मैसेंजर आरएनए ये डीएनए की मदद से बना है, तो जो डीएनए ने बोला उसका मैसेज लेके मैसेंजर आरएनए दिस राइबोसोम के ऊपर वो लोकेट हो गया. सो इट इज द अल्टीमेटली डीएनए के पास ऐसी माहिती थी कि इस तरीके की एक पॉलीपेप्टाइड की चेन बने, इसीलिए आरएनए का नाम रखा मैसेंजर आरएनए. ये सिर्फ मैसेज देने वाला है. ये तो वो चिट्ठी का चाकर है कि भाई यहां से चिट्ठी ली, इसको दी, भाई ऐसे काम करना है. उन्होंने खुद ने नहीं किया. So these genetic codes on the mRNA, they are actually कहां से आया, किसकी वजह से आया, किसके मुताबिक आया,
डीएनए के मुताबिक आया। तो द बॉस इज डीएनए। The hidden information for synthesis of such kind of the polypeptide chain is actually stored in DNA. तो स्टोर डीएनए में होती है, उसका ट्रांसपोर्टेशन ये मैसेंजर आरएनए करता है, और ये प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस में 3 काइंड्स के आरएनए ने रोल प्ले किया: मैसेंजर आरएनए, रिबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। 3 ये आपको याद रखना है। 12th में जब जेनेटिक्स आएगा तो जो जेनेटिक्स है उसकी जो एबीसीडी है, उसका एबीसीडी में भी थोड़ा सा एक छोटा सा पॉइंट भी यहाँ पर मैंने नहीं सिखाया है, उससे भी कम सिखाया है। आपकी बुक, आपका जो मटेरियल है उसके अंदर आप अभी पढ़ोगे तो सिर्फ एक सेंटेंस लिखा हुआ होगा। मैं अभी यहाँ पर वो आपके सामने रखने वाला हूँ। mRNA ट्रांसलेट इनटू प्रोटीन, सिर्फ एक ही सेंटेंस लिखा है। ये हमने उसका थोड़ा सा डिटेल में अभी पढ़ाई की है। तो अभी मैं कहूँ कि जब यूकेरियोट्स आएंगे, यूकेरियोट का राइबोसोम 80S प्रकार का होता है, उसका सब यूनिट 60-40, प्रोकैरियोट का 70S, सब यूनिट 50S 30S हो गया। एक डिफरेंस भी हो गया, साथ में यहाँ पर मैंने प्रोकैरियोट्स का जो राइबोसोम्स होता है उसके बारे में भी कह दिया। अभी ये है या फिर 70S है, प्रोटीन सिंथेसिस तो सेम तरीके से ही होती है अपने में और बैक्टीरिया, बिकॉज दिस कोड्स आर यूनिवर्सल। फॉर एग्जांपल फर्स्ट कोड AUG है, AUG क्या है वो सब आएगा। सपोज फर्स्ट कोड AUG है एंड इट इज फॉर मिथियोनिन अमीनो एसिड, तो अपने यूकैरियोट्स में भी जब मैसेंजर आरएनए के ऊपर AUG होगा, दैट कोड्स फॉर मिथियोनिन। So they are universal and they are universally accepted thing, right? Easy है, समझ में आ गया है। जेनेटिक मटेरियल डीएनए ओपन होता है, मैसेंजर आरएनए बनाता है। सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए विद द हेल्प ऑफ द डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। सो द मैसेजेस ऑफ द डीएनए इज नाउ इन मैसेंजर आरएनए in the form of genetic code. This messenger RNA is located on ribosome. Ribosomes are more than one. Here I have taken 3. So one group is formed in which we find one messenger RNA plus more than one ribosome, which is called polysome or polyribosome. Messenger RNA is translated into polypeptide chain. How? I have gone through it. अभी ये आपको याद रहे या फिर न रहे कि भाई जो कोड है उसके हिसाब से अमीनो एसिड आता है, बहुत सारा अमीनो एसिड बाइंड होके ऐसे ऐसे एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन के बाहर आएगी, सीक्रेट होगी सेल में से, अगर उसको बाहर काम है तो। अगर अंदर है तो अंदर का कोई भी प्रोटीन बनेगा, फॉर एग्जांपल एंजाइम बनेगा, सेल के अंदर रहेगा। ओके, सिंपल है, बहुत इजी। सेंट्रीफ्यूगेशन, स्वेडबर्ग, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट इंडेक्स, इनडायरेक्टली इंडिकेशन ऑफ साइज एंड डेंसिटी, इतना याद रखना है। द मेन फंक्शन ऑफ रिबोसोम इज टू सिंथेसाइज प्रोटीन। अगर अपने को कोई पूछेगा कि पोलिसोम या फिर पोलीरिबोसोम का कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट कौन कौन सा है, आंसर आएगा मैसेंजर आरएनए, रिबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन, because ribosome is nothing but the mixture of protein and ribosomal RNA. ये भी अपने को याद रखना है। तो जेनेटिक्स में इसके बारे में हम देखेंगे डिटेल में, अभी तो इतना ही आता है, Now one more, inclusion bodies. They are very simple, reserved food particles in the prokaryotes. Reserved food particles without having any membrane. रिबोसोम में मेम्ब्रेन है? नहीं है। रिबोसोम के आजू बाजू मेम्ब्रेन है? नहीं है। तो ये जो इंक्लूजन बॉडीज है
ये फूड जो स्टोर हुआ होता है वो एक ग्रेन्यूल्स की माफिक है, अवेलेबल इन द साइटोप्लाज्म फ्रीली। तो ये हमने अभी प्रोकैरियोट्स का ड्राइंग किया, इसके अंदर ये इंक्लूजन बॉडीज रख देते, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स, फॉस्फेट का स्टोरेज साइनोफाइसियन में मेजोरिटी एन और एस ज्यादा रहते हैं, नाइट्रोजन और सल्फर। ग्लाइकोजन अपने को पता है, ग्लाइकोजन इज ए शुगर। तो ये तीन नाम याद रखना है आपको। मोreover gas vacuoles are also found in some of the prokaryotes. for example पर्पल बैक्टीरिया जो होता है, अभी इसका नाम भी आएगा, यहाँ पर मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया होता है, उसके अंदर भी होता है गैस वैक्यूल। इन द लास्ट लेक्चर आई थिंक वी शो अबाउट इट। वो साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, उसके अंदर गैस होता है। ओके, तो ये जो वैक्यूल होती है, इसकी वजह से वो फ्लोटिंग में थोड़ा सा इजी फील करता है बैक्टीरिया। गैस वैक्यूल का ये जो काम है। तो अभी ये एक टॉपिक जो बाकी था प्रोकैरियोट्स में, ये यहाँ पर हमने अभी पढ़ाई की। अभी जाएंगे यूकैरियोटिक सेल की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन में। यूकैरियोटिक सेल, उसके अंदर अपने को पता है एक सीखना है प्लांट और सेकंड इज एनिमल सेल। ये दो सेल सीखना है। तो पहले हम स्टडी करेंगे प्लांट का। आपको मालूम ही है, यहां पर मैं रख रहा हूं न्यूक्लियस और बहुत बड़ी वैक्यूल। वैक्यूल सबसे बड़ी होती है, उसके अंदर वैक्यूलर शेप होता है। तो अभी क्या मैंने किया, यहाँ पर देखो, एक ये मैंने बनाया और ये एक मैं अभी बना रहा हूं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। Now, vacuole is also membrane bound, endoplasmic reticulum is also membrane bound. इसको थोड़ा सा मैं अभी 3D स्ट्रक्चर दे रहा हूं। ओके, ये मेम्ब्रेन बाउंड है। अभी सोचो, इमेजिन यहां पर सिर्फ साइटोप्लाज्म था, सिर्फ। उसके बाद मैंने ये मेम्ब्रेन बाउंड वैक्यूल बना दी। I have also drawn one more membrane bound organelle which is called endoplasmic reticulum. So actually this organelle create one kind of the compartmentalization in this cytoplasm, in this cell we can say. So in this cell we find compartmentalization through organelles. भाई ये साइटोप्लाज्म था। As soon as I have drawn this membrane, तो अंदर का एक पार्ट हो गया, बाहर का एक दूसरा पार्ट हो गया। अगर मैं इसको उठा लूं तो पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म ही था। अगर ये पूरा का पूरा यहाँ पर हॉल है, अगर ये हॉल के अंदर में यहाँ पर पार्टीशन कर दूं तो कंपार्टमेंट हो जाएगा, सामने का और इधर का। तो मैंने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ दिस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल साइटोप्लाज्म का एक तरीके से डिवीजन कर दिया कंपार्टमेंट में। तो ये जो अभी कंपार्टमेंट हो रहा है, इट इज अचीव्ड थ्रू ऑर्गेनेल्स। तो हमारे पास न्यूक्लियस है, ये इसका मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके अंदर क्रोमोसोम रहेगा, उसका जेनेटिक मटेरियल। अब ये जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए एंड डीएनए कैन बी transformed into chromosomal structure in one metaphase of cell division. सेल डिवीजन का जो बहुत सारे फेसिस होते हैं, फर्स्ट इज प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड टेलोफेस।
उसके अंदर मेटाफेस में ऐसा होगा, वो मैंने आपको सिखाया था अगले लेक्चर में, शायद पहला ही लेक्चर था वो, कि हाउ दिस डीएनए is arranged to give one specific shape, and that particular shape we can observe during metaphase, and that is known as chromosome. So genetic material can be transformed after its arrangement into one specialized structure called chromosome. ऐसा प्रोकैरियोटिक सेल का जो डीएनए होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, वो नहीं कर सकता. दिस इज ओनली सीन इन यूकैरियोटिक सेल. So one more difference between prokaryotes and eukaryotes, its genetic material can be transformed into chromosome. The genetic material of the prokaryote is not able to transformed into chromosome. ऐसा क्रोमोसोम नहीं बना सकता है. यूकैरियोटिक में ऐसा बन सकता है, ऐसा शेप. इसीलिए प्रोकैरियोट्स में जो भी उसका जेनेटिक मटेरियल है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ द डीएनए, वी कॉल इट एज बैक्टीरियल क्रोमोसोम. मगर ऐसा नहीं हो सकता. दिस इज ओरिजिनल रियल क्रोमोसोम. मेटाफेस में देखने को मिलता है. अबाउट मेटाफेस in detail we are going to see in our one lesson number 10, cell division. उसके अंदर ये सब आने वाला है. अभी इसके अंदर जाएगा. ये सेल मेम्ब्रेन है. सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल होती है. आई एम ड्रॉइंग इट विद द हेल्प ऑफ रेड कलर, और वो थिक होती है, मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. ये सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, इट इज नॉन लिविंग. सेल वॉल के अंदर सो मेनी ट्यूबुलर पोर्स होते हैं विच आर कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा. तो उसको कैसे दिखाऊं? तो इसको थोड़ा सा 3D इमेजिनेशन दे रहा हूं. मैंने सेमिनार में भी बोला था, इसके अंदर पोर मुझे दिखाने हैं, हॉल दिखाने. ये लो, हो गया. यहां पर थोड़ा सा दिखा दो, चलो, ये हो गया, हो गया, ये हो गया. बहुत सारे होते हैं. इसका नाम क्या रखा? प्लाज्मोडेस्माटा. मटेरियल अंदर आएगा, यहां से सेल मेम्ब्रेन के साथ कनेक्टिविटी में आएगा. अभी ये एक सेल की सेल वॉल, यहां पर दूसरे सेल की सेल वॉल का ड्राइंग कर रहा हूं. दिस इज इट्स एडजेसेंट सेल. दोनों के बीच में मिडल लेमेला एक लेयर होता है, उसको क्या बोलेंगे? मिडल लेमेला. ये बात याद रखना, 11th लेसन नंबर 11 में आने वाला है इसका रोल. मिडल लेमेली बोलते हैं इसको. तो ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है. सेल वॉल, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, दो सेल के बीच में मिडल लेमेली, मेड अप ऑफ कैल्शियम पैक्टेट. जब हम सेल वॉल की पढ़ाई करेंगे तब भी थोड़ा सा आएगा. मेड अप ऑफ कैल्शियम पैक्टेट, इट्स ए नेम ऑफ वन सब्सटेंस. अभी इसके अंदर जाते हैं. यहां पर विद द हेल्प ऑफ ग्रीन कलर लेट वी ड्रॉ थोड़ी सी बड़ी क्लोरोप्लास्ट. बड़ी ऑर्गेनेल है. इसका काम फोटोसिंथेसिस करना, मतलब फूड बनाना विद द हेल्प ऑफ CO2 H2O, राइट. जनरली दे आर लोकेटेड एट द peripheral side of cell. Why? Because exchange of the gases can become very easy, swiftly it can occur. That is why. यहाँ पर रख देते हैं
Golgi body, discovered by Camillo Golgi. Lysosome, peroxisome, ब्लू कलर का peroxisome, ribosome, ribosome, ribosome on endoplasmic reticulum, ribosome on endoplasmic reticulum, ribosomes freely in the cytoplasm, ribosome in mitochondria, in chloroplast. This is in mitochondria. This is mitochondria. उसके अंदर ribosomes. Ribosomes on nuclear membrane. So the location of the ribosome in the eukaryotic cell, in the typical plant cell, cytoplasm में freely, number 1, number 2 on nuclear membrane, number 3 on endoplasmic reticulum, number 4 in mitochondrion, number 5 in chloroplast. नंबर 5, इसका नाम क्या रखा है मैंने? पेरोक्सिसोम. पेरोक्सिसोम के बारे में लेसन नंबर 13 11th में पढ़ाऊंगा. लाइसोसोम, ये तो पावर हाउस हो गया. वन मोर पावर हाउस यहां पर कर देते हैं. ये सब साइटोप्लाज्म. इसके अंदर सेंट्रियोल नहीं होता है. सेंट्रियोल रहेगा यहां पर, ड्राइंग करेंगे एनिमल सेल में सेंट्रियोल. अभी ये डबल लेयर, उसके अंदर पोर, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पोरस है, पोर्स है. व्हाट माइट बी द रोल ऑफ दिस मेम्ब्रेन, ऑफ दिस पोर्स प्रेजेंट इन दिस मेम्ब्रेन? तो ये पोर का रोल है वो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल इन बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म. न्यूक्लियस के अंदर का है उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म. जिसके अंदर क्रोमेटिन मटेरियल, जिसके अंदर न्यूक्लियोलस, लेट वी ड्रॉ इट. इसको भी थोड़ा सा 3D बना देते हैं ऐसे. ओके, इसको ऐसा कर दिया, कट कर दिया है, थोड़ा सा 3D अपन ने बना दिया. तो इसके अंदर मुझे ड्राइंग करना है क्रोमेटिन मटेरियल का. पहला लेक्चर याद करो, याद आ गया. दिस इज क्रोमेटिन मटेरियल. डीएनए के साथ प्रोटीन है और न्यूक्लियोलस ड्राइंग करता हूं. यहां पर न्यूक्लियोलस विदाउट एनी मेम्ब्रेन. न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन मटेरियल. क्रोमेटिन मटेरियल के पास डीएनए और प्रोटीन है. उनमें से जो डीएनए उसको बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल. ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है उनमें से when this cell undergo cell division, when this cell undergo cell division, when this cell pass through the first phase which is called prophase, and when this cell enter to the second phase which is called metaphase, during this phase from this chromatin material these kinds of the chromosomes are formed. ऐसा प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं हो सकता है. ये अपने को सोचना है. मैंने आपको सिखाया था ना कि इसका अरेंजमेंट ऐसे 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 हो जाता है. So it's nothing but one kind of the super coiling of chromatin material to give rise to such kind of the structure which is called chromosome, and this process is clearly visible that starts from the prophase and come to an end to metaphase. ये दोनों फेज का नाम याद रखना. सेल डिवीजन का फंडामेंटल फेज का नाम अपने को याद होना चाहिए. प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज. अभी ये 4 के अंदर जाता हो. ओके, साइटोकाइनेसिस में भी हम जाएंगे. अभी ये जो टर्म है वो थोड़ी सी टफ है. उसका थोड़ा सा ऐसे ड्राइंग करने के बाद ही उसका नॉलेज अपने माइंड के अंदर जा सकता है. मतलब इट इज समहाउ हार्ड, मगर कोई बच्चे को समझ में नहीं, ऐसा हार्ड नहीं है.
ऐसा कोई भी सब्जेक्ट हार्ड नहीं हो सकता है, कोई भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। अगर माइंड ओपन है, अगर हौसला बुलंद है कि अपने को डॉक्टर बनना ही है, 650 लाना ही है या फिर मोर देन दैट, सब अपने आप अंदर आ जाएगा। 50% तो प्रॉब्लम अपना सॉल्व हो जाएगा। अगर कुछ हो रहा है, सर्दी खांसी कोरोना जैसा कोई सिम्टम हो रहा है, और अपन लोग बड़े साहब के पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, साहब कोरोना, साहब देखेगा बच्चे तेरे को कुछ भी नहीं है, तू अभी ठीक हो जाएगा एक गोली से, अपना आधा दर्द तो खत्म हो जाएगा। सेम थिंग यू कैन अप्लाई। अपने को डॉक्टर बनना है, अपने को 650 मार्क्स लाना है, अपने को ये सब समझना है, ये इजी है। साहब ने अभी कह दिया, ये सब अंदर हमारे माइंड के अंदर आ गया, 50% काम आपका हो गया। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिविटी। अभी ये अपना 3rd लेक्चर है ना, आपको मालूम हो गया होगा कि जो नीट है वो कोई एसएससी में जब आपने पढ़ाई की थी उससे कुछ अलग है। विद इन 3 लेक्चर आई थिंक यू माइट कम टू नो अबाउट दिस फैक्ट। मगर हार्ड है, लेंथी है, टफ है, माइंड चलाना पड़ता है। इट इज फॉर ऑल, नॉट फॉर ओनली वी पीपल, सबके लिए है ना। तो ऐसे पढ़ेंगे बोर्ड वर्क के साथ, बहुत इजी हो जाएगा। अभी आप देखना, आप जब पढ़ेंगे ये टॉपिक इतना सारा नहीं है, आप कहेंगे ये विद इन 15 मिनट आपका माइंड आपको बोलेगा ये अभी उसको एक बार पढ़ लिया है, अभी देखने की जरूरत नहीं है, अभी इसमें से कोई भी क्वेश्चन निकालो, मुझे आने वाला है। ये आपके माइंड में अभी घूम रहा है। ये देखो, मैंने 3D इमेजिनेशन करवाना स्टार्ट कर दिया, कैसे होता है। ये सेल को मैंने ऐसे कट कर दिया है, आधा पार्ट को निकाल दिया है। न्यूक्लियस का भी थोड़ा सा मैंने अभी 3D इमेजिनेशन बना दिया है। तो मेम्ब्रेन कैसे होता है, ए यहाँ से ऐसा एक कर दो तो मेम्ब्रेन के अंदर ये पोर कैसे होता है ये अपने को मालूम हो जाएगा। मेम्ब्रेन कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन, ये भी अपने को मालूम हो जाएगा। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियोलस है, जनरली रिमेन इन कॉन्टेक्ट विथ क्रोमेटिन मटेरियल, सो आई कैन नॉट ड्रॉ दिस न्यूक्लियस ओवर हियर, आई कैन नॉट। ये साइंटिफिकली रॉन्ग फिगर हो जाएगी। इट मस्ट बी इन कॉन्टेक्ट विथ ऑलवेज क्रोमेटिन मटेरियल। और रिबोसोम्स का जो सिंथेसिस रिबोसोम का, ये सब बनने का, फॉर एग्जांपल आरआरएनए यहाँ से होता है, न्यूक्लियोलस से। ये बहुत डिटेल की बात है। तो ये आपके सामने मैंने रखा है टिपिकल प्लांट सेल। ऑर्गेनेल्स की वजह से कंपार्टमेंटलाइजेशन हो गया है, कंपार्टमेंट हो गया ये साइटोप्लाज्म का, ये थ्रू ऑर्गेनेल्स। अभी देखो यहाँ पर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर मैंने रिबोसोम्स लगा दिया। तो जो कोई भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर रिबोसोम है उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, नहीं है उसको स्मूथ बोलते हैं, इसको बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नहीं है उसको बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER। माइटोकॉन्ड्रियम, साइटोप्लाज्म, गोल्गी बॉडी और गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, पेरोक्सीसोम, क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पर साइटोस्केलेटन रहेंगे, उसके अंदर ट्यूब्यूल और फाइबर रहेंगे। थोड़ा सा ड्रॉ करें ऐसे, थोड़ा सा, साइटोस्केलेटन का भी round about 3 to 4 sentences are given in our book, so it's a part of our syllabus we can say, okay। अभी टिपिकल एनिमल सेल में जाएंगे। बाउंड्री है सेल मेम्ब्रेन,
न्यूक्लियस सेम। अभी मैं इसको 3D इमेज नहीं देने वाला हूं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमेटिन मटेरियल, न्यूक्लियोलस, ओके। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी जाएंगे। थोड़ी सी ही ड्रॉ करेंगे, बहुत सारी ड्राइंग नहीं करनी है अभी। अभी अपने को पता चल गया, और अपने को भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक लेक्चर में आने वाली है ये ऑर्गेनेल। रख देता हूँ रिबोसोम, यहाँ पर रख देता हूँ राइबोसोम्स, यहाँ पर रख देता हूँ राइबोसोम्स फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म। ऑल्सो इट इज प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पर ऐसे करके माइटोकॉन्ड्रिया कर देते तो राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ गया भाई, माइटोकॉन्ड्रियन के अंदर आ गया। गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, पेरोक्सीसोम भी एनिमल सेल में रहता है। जस्ट नियरर टू न्यूक्लियस, राइट एंगल टू ईच अदर अरेंजमेंट। कौन सी ऑर्गेनेल है विदाउट लेयर? सेंट्रोसोम, हमने देखा था। दिस इज सेंट्रोसोम, ओके। साइटोप्लाज्म, अभी you have heard one term during your 10th standard, villi and microvilli. These both are totally different thing. We are going to discuss about microvilli. तो इसको भी थोड़ा सा 3D इमेजिनेशन देना पड़ेगा तो आपको समझ में आएगा। माइक्रोविल्ला आर नथिंग बट द एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन ऐसे हो गया, ये आपको पता चल गया, ये ऐसे। So this cell membrane is actually coming out, protrude out in the form of the tube, very fine tube. This is microvilli. तो बहुत सारी होती है, हर एक सेल के अंदर होती ही है ऐसा नहीं है। जहां पर उसकी नीड है वहां पर होगी। फंक्शन के हिसाब से ये सब स्ट्रक्चर होते हैं ना। अगर हमारे पास 9 सेल है तो उसके अंदर ऐसी माइक्रोविल्लाई नहीं होगी। अगर हमारे पास अपना इंटेस्टाइन का सेल है तो ये होगी, क्योंकि वहां से एब्सॉर्प्शन करना है। Now one fact is very clear that due to the projection of such kind of the tubular structure, it is nothing but the modification of cell membrane, the total area increases. So where we need to increase the total area, the place where we need to get more things from outside to inside, तो एब्सॉर्प्शन के लिए चाहिए। तो जहां से एब्सॉर्प्शन होगा हमारे इंटेस्टाइन में से होगा, तो वहां जो सेल रहता है वहां पर ये माइक्रोविल्लाई होगी। माइक्रोविल्लाई, रेडी? इसके बारे में डिटेल में हम जानेंगे जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का चैप्टर आएगा। वो है अपना चैप्टर नंबर 16। तो आज बहुत सारे लेसन में जो आने वाला है उसका यहाँ पर आया। अभी इसका नाम सेंट्रोसोम, collectively centrosome, each is centriole arranged right angle to each other, require for cell division. इसके अंदर नहीं है तो क्या इसके अंदर सेल डिवीजन नहीं होगा? तो इसका जो काम होता है उसकी वजह से सेल डिवीजन वन काइंड से पॉसिबल बनता है। तो इसका जो काम होता है, ऐसा काम यहाँ पर साइटोस्केलेटन, उसका जो साइटोप्लाज्म के अंदर ये पड़ा है, वो क्रिएट करेगा। मेम्ब्रेन नहीं है। अभी देखो,
हर एक का नाम में जाएंगे धीरे धीरे। यहाँ ऐसे करके रिबोसोम। आपको मेरे साथ में चलना है। इसका नाम लाइसोसोम, सुसाइडल बेग कहते हैं। इसका नाम गोल्जी बॉडी या गोल्गी बॉडी और गोल्गी एपेरेटस, माइटोकॉन्ड्रियन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिख रहा हूं, जिसके ऊपर राइबोसोम से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर लिखा है। माइक्रोविल्लाई लिख दिया, सेंट्रोसोम लिख दिया, साइटोप्लाज्म। ये अपने को पता है क्लोरोप्लास्ट है, क्रोमेटिन मटेरियल, राइट। अभी करना है पहले डिफरेंस इन बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। एनिमल सेल में माइक्रोविल्लाई होता है, प्लांट सेल में नहीं होता है। एनिमल सेल में सेंट्रोसोम होता है, यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट होता है, नहीं होता है। और वैक्यूल बिगर नहीं होती है। सेल वॉल और उसके अंदर प्लाज्मोडेस्माटा, यहाँ पर आउटर लेयर है ही नहीं। तो नीचे लिख रहा हूं एनिमल, टिपिकल एनिमल सेल, टिपिकल प्लांट सेल। Two are collectively considered as eukaryotic cell. What about prokaryotic cell? Prokaryotic cell. तो अभी डिफरेंस करना है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक, प्रिमिटिव न्यूक्लियस, न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, naked with nuclear membrane, closed. Genetic material, DNA, cannot be transformed into such kind of the chromosome, can be transformed into such kind of the chromosome in eukaryotic. दो हुआ, दो हुआ। तीसरा स्मॉलर, लार्जर। चौथा सेल डिवीजन फास्टर, स्लो। पांचवा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। छठा रिबोसोम्स आर ऑफ 70s काइंड, रिबोसोम्स आर ऑफ 80s काइंड। ये हमने प्रोकैरियोट का रिबोसोम्स का स्टडी किया। 6 डिफरेंस अभी ये जो हमारा 3 लेक्चर आया उनके हिसाब से हो गए। ठीक, बहुत अच्छा हुआ। अभी है और नहीं है ऐसा हमको नहीं अभी करना है। प्लाज्मिड बैक्टीरिया के अंदर होता है, इसके अंदर प्लाज्मिड नहीं होता है। बैक्टीरिया के अंदर रिबोसोम्स सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होता है, कई कई में साइटोप्लाज्म में, बट यहाँ पर क्या होता है, साइटोप्लाज्म में फ्री भी होता है, ईआर के ऊपर होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रियन में होता है। ऐसे डिफरेंस बनते जाएंगे, मगर जो 6 मेजर डिफरेंस हमने यहाँ पर बनाए, दैट यू मस्ट रिमेंबर, इट मस्ट बी देयर इन योर माइंड एट एवरी मोमेंट। तो ऑर्गेनेल के थ्रू कंपार्टमेंट हुआ, ये एक याद रखना है। मेम्ब्रेन वाली ऑर्गेनेल्स यूकैरियोटिक सेल के अंदर देखने को मिलती है। अभी हम एमसीक्यू देख लेंगे और उसकी स्लाइड भी देख लेंगे। ओके, જોઈ લઈએ આજનો આપણે ટોપિક। ભાઈ થોડા सा गुजराती भी बोलूंगा। हाँ, ribosomes and inclusion body, this topic 8.4.2 you are to go through today।
In prokaryotes, ribosomes are associated with the plasma membrane of the cell. You are aware. Size कितनी है? 15 nm by 20 nm. This is the information which you are to mug. Ribosome की size 15 nm by 20 nm. ये याद रह जानी चाहिए. अभी 15-20 याद रखवाना છે. Made up of 2 subunit that we are aware, 50s, 30s, 70s. अगर यूकैरियोटिक होगा तो 60s plus 40s और रहेगा 80s. फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस. आगे बढ़ते हैं. पोलीरिबोसोम और पोलिसोम, यू आर अवेयर, 1 mRNA with more than 1 ribosome. Several ribosomes may attach to a single messenger RNA to form a chain called polysome or polyribosome. राइबोसोम ऑफ पोलिसोम, इसके अंदर जो राइबोसोम रहता है वो ट्रांसलेट द mRNA इनटू प्रोटीन. इतना ही लिखा है. माय डियर फ्रेंड्स, ये एक लाइन को क्लियर करने के लिए मैंने आपकी 15 से 20 मिनट ली है, क्योंकि जेनेटिक्स के अंदर वो सब आने वाला है डिटेल में. इसलिए तो अभी ये तो बहुत इजी हो गया ना. यू आर अवेयर दैट द मीनिंग ऑफ ट्रांसलेशन, यू आर अवेयर द मीनिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसलेशन का मीनिंग क्या हुआ? मैसेंजर आरएनए के पास जो जेनेटिक कोड है, वो कोड का यूज करके एक हमको प्रोटीन बनाना है, पॉलीपेप्टाइड चेन बना है. उसके अंदर टीआरएनए का भी रोल होता है. यू आर अवेयर. इंक्लूजन बॉडीज आपको पढ़नी है. रिजर्व मटेरियल स्टोरेज बॉडीज है. स्पेशलिटी नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन लेस. तो भाई अभी हमारे पास मेम्ब्रेन लेस ये एक इंक्लूजन बॉडी है, एक राइबोसोम है. यूकैरियोटिक सेल में तो देखे तो राइबोसोम्स भी है, सेंट्रियोल भी है, न्यूक्लियोलस भी है, जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं है. ये भी याद रखना है. Not bound by any membrane system and free in cytoplasm. It is observed as free particle in cytoplasm. Example, phosphate granules, synophycean granules, glycogen granule. याद रखें इसके अंदर N and S ज्यादा रहता है. ये these are the things to be mugged. गैस वैक्यूल्स किस में है? ब्लू ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ग्रीन फोटोसिंथेटिक. सब फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया. फोटोसिंथेसिस करने के लिए लाइट चाहिए. लाइट के लिए आपको ऊपर आना पड़ेगा बहुत. अगर आप वाटर के अंदर डीप हो तो वहां पर लाइट नहीं आएगी. तो गैस वैक्यूल होनी चाहिए. अभी यूकैरियोटिक सेल आपको 8.5 4 या 5 लाइन दी गई है, उसकी पढ़ाई करनी है. प्रोटिस्ट, प्लांट, एनिमल एंड फंजाई. फूग जिनको बोलते हैं ना, अभी ये सब आया ना, म्यूकर माइक्रोसिस, ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, ये सब उसके जो स्पोर होते हैं वो अपने आसपास रहते ही है, मगर हमारी इम्यून सिस्टम ज़्यादा है इसलिए उसका ग्रोथ नहीं हो सकता है. ये जो सब अभी कोरोना के पेशेंट अच्छा हो के घर पे जाते हैं, उसकी इम्यून सिस्टम कम है. ब्रश बस बहुत दिनों से नहीं किया है, साफ सफाई नहीं की है, उसके अंदर ये होती है. प्रोटिस्ट क्या है? ये एक ग्रुप है पूरा का पूरा. फॉर एग्जांपल इसके अंदर अमीबा आएगा, इसके अंदर पैरामीशियम आएगा, इसके अंदर यूग्लिन आएगा. तो ये एक ग्रुप है. ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा, ये सब ग्रुप है. इसके अंदर अपन लोग आएंगे, एनिमल. तो ये चारों के चारों ग्रुप में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो यूकैरियोटिक सेल कहलाएगा. ये हमारा प्लांट सेल टिपिकल. थोड़ा सा एनालाइज करते हैं. ये अपनी बुक की फिगर है, अपने को हर एक नाम याद रखना है. देख लेते हैं. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा भाई? आपको बोलना है यस नो. यस. लाइसोसोम यस. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यस. प्लाज्मोडेस्माटा ट्यूबुलर पोर इन सेल वॉल. Microtubules are available, tubule or fiber, in the cytoskeleton. પછી peroxisome, cytoplasm,
क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल वॉल, मिडल लेमेला, वैक्यूल बहुत बढ़िया गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवेलप, गोल्गी apparatus, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, हर एक चीज आपको ये फिगर बुक की है, उसके अंदर नोमेनक्लेचर है, वो सब याद रखना है। आपको क्या करना है, ऐसे करो क्या नाम, ऐसे करो क्या नाम है, टेस्टिंग करते जाना। और अपनी एनिमल, इसमें माइक्रोविल्ला है, एनिमल में माइक्रोविल्ला है, बाकी सब अपने को पता है ये सब। ये देखो, गोल्गी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रियन, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, पेरोक्सीसोम, दोनों में रहती है प्लांट और एनिमल ने, सेंट्रियोल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सब आ गया। ये सब ऑर्गेनेल। पेरोक्सीसोम, रिमेंबर इट इज सिंगल लेयर ऑर्गेनेल, lysosome single layer organelle. बाकी फॉर एग्जांपल लेट वी सी अबाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, 2 लेयर, क्लोरोप्लास्ट में 2 है और माइटोकॉन्ड्रियन में 2 है। तो सम ऑफ द ऑर्गेनेल्स डू नॉट हैव मेम्ब्रेन, सम ऑफ द ऑर्गेनेल्स हैव ओनली सिंगल मेम्ब्रेन, फॉर एग्जांपल लाइसोसोम एंड पेरोक्सीसोम, बाकी सारी डबल लेयर। ओके, तो ये आपको याद रखना है बच्चों। अभी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ओके, तब तक के लिए अनुमति दीजिए, बाय बाय।